ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ C ਹੁੰਦੀ ਹੈ Q/V ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ the plates are at same potential, plates are at same potential। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। So in this case the capacitance is infinity. Question number 2, the plates of the parallel plate capacitor ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ epsilon naught A/D। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਤਾ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਥਿਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਤਾ D minus T plus T/K। epsilon naught ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/D is equal to 1/D कितना करीज होगा 1.6 मिलीमीटर when thickness of 2 millimeter is inserted 2 upon K क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो dd कट जाएगा K ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the plate that is equal to 5। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ने 40 माइक्रोफैरड ਦੇ ਹੈ। Space between them is filled with a dielectric current। The capacitance of the system ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 40 into 3 ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 120 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ 40 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੋਨੇ टू सीरीज लगी हुई है, दोनों सीरीज ने 40 माइक्रोफैरड 120 बन गई। दूसरा सीगा साडे कोले 40 माइक्रोफैरड का, ये सीगा हो गया 40 120। तो सीरीज के विच असीं ऐ लिखते हैं 1/20 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/CS। 120 LCM आ गया 1 + 3 4/120 इनू कैंसिल करता 30 आ गया। तो नैट कैपेसिटेंस साडे कोले आ जाएगी 30 माइक्रोफैरड। ये सी क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। इन मैं रब करने लगा ताकि उत्ते स्पेस हो जाए। 100 पिकोफैरड ਦਾ ਇਹ 200 पिकोफैरड ਦੇ ਹੈ, ਇਹ 100 पिकोफैरड ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 100 पिकोफैरड। 1/200 1/200 2/200 100 पिकोफैरड। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 200 पिकोफैरड। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1/200 प्लस 1/100। तो नैट कैपेसिटी जी बन जाएगी ये बन जाएगी 1/100 200 1 + 2 3/200। तो कैपेसिटी हो जाएगी 200/3 पिकोफैरड पिको। ਹੁਣ पोटेंशियल सानू दे रखे है, असी चार्ज कढ़ना है। क्यों जिहड़ा हुंदा CV के बराबर हुंदा C जिहड़ी हैगी है वो 200/3 है, ये 300 है, इन्होंने कैंसिल करता 100 आ गया, ये बन गया 200 पिकोफैरड 10⁻⁻12 हैगा, ये बन जाएगा पिकोकूलम। इन्ना चार्ज बन जाएगा, इन्हों कैंसिल कर दो 200/3 पिकोफैरड ये आ गया। इन वोल्टेज ना मल्टीप्लाई कर दो 300 वोल्ट सीगे, ये साडे कोले बन जाएगा Q = CV। C सानू पता है, B सानू पोटेंशियल पता है, तो ये 100 ना कैंसिल हो गए 200 पीछे ये बन गए 20,000 पिकोकूलम। इन्ना चार्ज बन जाएगा। इनू थोड़ा सैट करके लिखना है तो तुसीं इनू सॉल्व कर सकते हो और ये बन जाएगा 1 2 3 4 2 × 10⁻⁸.001। चलो कोई गल नहीं, इन्हू इत्थे छड्ड दो, इन्ना पिकोकूलम चार्ज आ गया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਅਕ੍ਰੋਸ ਈਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 200। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਵੋਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ 300 ਵੋਲਟ ਹੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ 300 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ। ਪਰ 200 पिकोफैरड का कैपेसिटर है, 20,000 पिकोकूलम में दे रहा है, इसका मतलब 10,000 पिकोकूलम इस चले जाएंगे, 10,000 पिकोकूलम इस चले जाएंगे। ये चार्ज आ जाऊगा 20,000 क्योंकि आ वाला चार्ज दो पार्ट्स टुट जाएगा,
ਉੱਪਰ 100 ਹੈ, ਇਹ 100 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ 100 ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ 100 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਇਸ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, 100 ਇਸ ਚ ਚਲਾ ਜਾ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10,000 ਪੀਕੋ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਇਸ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ 10,000 ਪੀਕੋ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਇਸ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, Q = CV ਲਗਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Q/C। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Q/C। ਇਹ 10,000 ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C ਕਿੰਨਾ 100 ਪੀਕੋ ਕੂਲਮ ਪੀਕੋ ਫੈਰਡ ਦਾ 100 ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 100 ਵੋਲਟ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10,000 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ 300 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 150 150 ਤੇ 300 ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 300 ਹੈ ਤਾਂ CV ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ 300 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 300 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 150 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 150 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 150 ਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, 150 ਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 150 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ 150 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ Q = CV ਕਰੋ, V ਤੁਹਾਡਾ 150 ਹੈ × 200, 150 × 200, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, uncharged parallel plate capacitor having a dielectric constant K is connected to the similar air coated parallel plate capacitor which is charged to a potential। ਪਹਿਲਾਂ uncharged ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ कॉमन पोटेंशियल का मतलब होता है C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। पहला जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम भरता Kc, चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ अनचार्ज सीगा, दूजे वाले का C सीगा ते ਉਹਦੇ ਚ एयर सीगी, V0 पोटेंशियल सीगा, ये Kc सीगा, ये C सीगा। C कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाएगा, आंसर बन जाएगा V0/K + 1। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ਹੁਣ ਆते हैं क्वेश्चन 6 ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K1 ਹੈ, ਇਹਦੀ K2 ਹੈ, ਇਹਦੀ K3 ਹੈ, ਇਹਦੀ K4 ਹੈ, ਆਹ T1 ਹੈ, ਆਹ T2 ਹੈ, ਆਹ T3 है, आ T4 है, मीन वो सीरीज लगी हुई है। तो तुसी ये चीज पढ़ी सी कि ε0 A/T1/K1 ਇਹਦਾ एरिया क्रॉस सेक्शन सारे का सेम रखे है। ε0 A/T2/K2, ε0 A/T3/K3, ε0 A/T4/K4। ये चीज आप कल पढ़ी सी जो कैपेसिटर सीरीज च लगे हुए। अगर कैपेसिटर पैरेलल च लगे हुए होंगे इस तरह तो ये सपोज कर लो K1 सी, इस K2 है, इस K3 है, इत्थे कोई मटीरियल K4 पे है, इत्थे कोई। चलो आपने की करना हुण जदों ये पैरेलल च लगे हुए ने आपस दे विच तां कैपेसिटेंस जिहड़ी हैगी है इहदा एरिया A1 है, इहदा एरिया A2 है, इहदा एरिया A3 है, इहदा एरिया A4 है। तो ε0 A K1 A1 plus K2 A2 plus K3 A3 plus K4 A4 divided by small d, that is the distance between the plates of capacitor। ये चीज पढ़ी सी। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ 2 है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट स्मॉल d है और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ A/2 ਆਹ ਹੈ, A/2 ਆਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 ε0 d/2 ਓਵਰ
K एप्सिलॉन नॉट A by 2 D by 2, इसे किमें लिखूंगी 4 एप्सिलॉन नॉट A by 2 over D by 2, ठीक है। इधर क्या लिखूंगी 2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 over D, ठीक है। आ 2 ते 2 कैंसल हो जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A by D। आ 2 ते 2 कैंसल हो जाएगा, आ 2 ते हुण ये दो कैपेसिटर आपस च सीरीज च ते निचले वाला जिहड़ा कैपेसिटर हैगा इहदे नाल पैरेलल च इस तरह। हुण इहदी कैपेसिटी सानू दित्ती हुई है कितनी है 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, इहदी कैपेसिटी दित्ती हुई है 4 एप्सिलॉन नॉट A by D, इहदी कैपेसिटी दित्ती हुई है एप्सिलॉन नॉट A by D। हम देखो जो दो कैपेसिटर आपस में सीरीज च होन तो 1/CS हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट A by D 1/2 + 1/4 कितना आ गया 4 LCM 2 + 1 D बटा एप्सिलॉन नॉट A 3/4 तो CS बन गया एप्सिलॉन नॉट A by D 4/3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਤਾਂ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ C = ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट A by D 1 + 4/3, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 7/3 ਐਪਸਿਲਨ नॉट A by D। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਿਕਲ ਆਉਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। आओ देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है भी देखो ये 500 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आ 500 पोटेंशियल जो होएगा इत्थे भी होएगा, 500 वोल्ट इत्थे भी होएगा, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा 500/3, इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा 500/3, इस कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा 500/3। ਹੁਣ देखो Q = CV, चार्ज सीरीज च सेम रहता है, Q ਨੂੰ CV लिख लो, C कितना 10 माइक्रोफैरड, V कितना 500/3, तो कितना आ गया 5000/3 माइक्रोकूलम चार्ज होएगा। अगर तुमने इस चार्ज कटना है तो इस कितना हो जाएगा Q = CV करो, इस भी निकल होगा। तो असं टोटल चार्ज सर्किट का देखना है कितना चार्ज है। देखो ये तीनों सीरीज सीगे, आंसर बन गया 10/3 माइक्रोफैरड। आ किन्ने का सीगा 10 माइक्रोफैरड का, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ है तो नेट कितनी बन गई 10 + 10/3 40/3, टोटल कैपेसिटी इतनी आ गई माइक्रोफैरड। चार्ज कितना हो गया CV, ये कितना आ गया 40/3 × 500, पीछे 3 जीरो /3, ठीक है। सो मैनी माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਜਿਹੜਾ 500 × 10 5000 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ Q = CV, ਤੇ 5000/3 ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚੋਂ। ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮ ਆਫ ਬੋਥ ਦੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ 5000/3 + 5000 ਦੇਖ ਲਓ 3 × 5 = 15 + 5000 20000/3 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ टोटल चार्ज है। ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ C0, ਇਹ ਚਾਰਜ ਟੂ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ V0 ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਚਾਰਜ ਅ ਸਮਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰਿਪੀਟਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ V0 ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ, ਇਹ C0 ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਨਚਾਰਜ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ C(G), ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ 0, तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, बन गया C0 + V C0 + C। जो उन्हें दोबारा हम यही सर्किट चलता रहूगा, हम ये कैपेसिटी भी इन्नी आ गया, कॉमन पोटेंशियल ਇਹਦਾ भी इन्ना ही आ गया। पर लेकिन होया कि ये ਜਿਹੜਾ कैपेसिटर ਸੀਗਾ ਇਹ V0 है, ये ਜਿਹੜਾ कैपेसिटर भी ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਹੁਣ बन गया C0 V0 C0 + C। ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ C0 V0 C0 + C CV प्लस C × 0, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C0 + C, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ C0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + C0 + C ਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਸਕੁਅਰ × V0। इस तरह ये जो प्रोसैस सीगा हुण दूजी बारी होया ना, ये पहली बार सी, ये दूसरी बार सीगा, n बार रिपीट कीता तो n बार तो बाद nth पोटेंशियल जिहड़ा होऊगा वो बन जूगा C0 दा स्क्वायर अपॉन C0 + C दी पावर n × V0।
इस सी कढ़ना कितना होगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ V ਸੀਗਾ, V ਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। V/V0 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C0/C0 ਪਲੱਸ C। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ? C ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ V0/V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C0 ਪਲੱਸ C ਓਵਰ C0 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1। ये बन गया 1 प्लस C/C0 V0/V रेज टू दी पावर 1/n। ये प्लस का 1 है, इधर आके बन जाऊगा माइनस का 1। ये C0 ना मल्टीप्लाई खा जाऊगा इस तरह। तो साडे कोले नेट कैपेसिटेंस बन जाएगी C। ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 1। आ साडी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। आ साडी प्लेट ते नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव है तो इत्थे पॉजिटिव आ गया। आ पॉजिटिव है तो उरे नेगेटिव है तो इत्थे पॉजिटिव आ गया। बाय इंडक्शन इत्थे नेगेटिव आ गया। साडा एक कैपेसिटर ए बन गया, एक कैपेसिटर ए बन गया, एक कैपेसिटर ए बन गया। हुण जे तुसीं इस डायग्राम नूं थोड़ा ठीक करके बनाओ तां तुहाडा कैपेसिटर नंबर 1 है जिहड़ा ओहदी पॉजिटिव प्लेट हैगी है, जिहड़ी आ पॉजिटिव प्लेट आ पॉजिटिव है, आई ऐ पॉजिटिव 3 नंबर की पॉजिटिव इकट्ठियां लगी हुई, 1 नंबर ये 3 नंबर, 2 नंबर जो आ लग्या हुआ। चलो जी, एक कैपेसिटर नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब 3 हो गया। ये मान लो ये कैपेसिटियां सी दोनों सीरीज आंसर C/2। ये दोनों आपस के सीरीज च आंसर C/2, ये पैरेलल च आंसर आ जाऊगा 3/2C। C किहदे बराबर हुंदा है? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो नेट कैपेसिटी आ गई C नेट 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्वेश्चन नंबर 10 साडे कोले एक S1 इज क्लोज्ड, एक पहला अनचार्ज सीगा, एंड S2 इज ओपन, ये ओपन। लो जी, फिर कहता S2 क्लोज करता, S1 ओपन करता। तुसीं देखो पहला तो इहनूं चार्ज कीता, किवें चार्ज किया 2C इंटू V प्लस C इंटू 0 अपॉन 3C 2C प्लस C। तो साढ़े को पोटेंशियल आ गया, सपोज कर लो P1 कॉमन पोटेंशियल। तो यदि वैल्यू आ गई साढ़े को 2/3V इन्नी आ गई। हुण की कीता, जदों इहनूं करता तो हमने ओपन, ये करता क्लोज, तो दिस ऐदा बन गया। आपने बंद कर दी बात। साढ़े को बन गया 2C, ये बन गया 2/3V, ये बन गया C 2/3V। पर ये ओपन करता, इनू क्लोज करता, तो दिस कैपेसिटर जो बाईपास हो गया, बाईपास कॉन्सैप्ट लग गया इसके उत्ते। तो एक कैपेसिटेंस फिर पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। हुण की बन गया साढ़े को इस तरह बन गया, आ 2C बन गया इंटू 2/3V, आ साढ़े को जो कैपेसिटर सी C ये 0, आ फिर ओपन। हुण साडे कोल जो कैपेसिटी कढांगे तो बन जाएगी सैकेंड केस दे विच 2C इंटू 2/3V इंटू C इंटू 0 ओवर 2C प्लस C। ये बन गया 3C, ये बन गया 3 3 का 9, 4/9 4/9 C कैंसल, और ये बन गया 4/9 वोल्ट। इस तरह ही फिर इनू डिस्चार्ज करता, उन्होंने चार्ज करता, ये प्रोसैस जिहड़ा है लगातार चलता रहा। तो फाइनल फाइंड दी वोल्टेज क्रॉस 2C आफ्टर n साइकिल। पहला 2/3C, फिर 4/9 होगी, फिर कुछ और हो जाएगी। इसका मतलब n साइकिल बाद बन जाएगी 2/3 रेज टू दी पावर n। आओ चलिए 11वें क्वेश्चन लिखने स्पेस चाहिए, मैं रब करदा। 11वां क्वेश्चन है, असी पोटेंशियल इत्थे कढना, इत्थे कढना, ये 0 कीता हुआ। इसका मतलब हर ये कैपेसिटर के क्रॉस पहली गल 2.5 है। हुण जे 2.5 है तो इस पॉइंट ते पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 2.5। इत्थे कितना हो जाएगा? 5। इत्थे कितना हो गया? 7.5। हुण 7.5 चो 10 माइनस करते तो इत्थे कितना आ जाएगा? -2.5 वोल्ट। ये 11वां क्वेश्चन। आओ चलिए 12वां क्वेश्चन। Switch is closed for a long time and then it is open. Now dielectric constant K equal to 3 is inserted between the plates of the पहला switch is closed for a long time. एनर्जी कितनी होगी?
हाफ CV दा स्क्वायर प्लस हाफ CV दा स्क्वायर, ये बन गई CV दा स्क्वायर। हुण स्विच इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाफ C कितना 3C A equal to 3 वाला मटीरियल ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤਾ 3C into V ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 2C ਬਣ ਗਿਆ 6C। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3/2CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ, Q ਹੁੰਦਾ CV ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 6C। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3/2CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ C ਦਾ ਸਕੁਅਰ V ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ 6C। C कैंसल, एलसीएम ले लिया 6 आ गया, 3 3 ਦਾ 9 प्लस 1 into CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 10/6 CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5/3 CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ એનર્ਜੀ ਚੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ इनिशियल एनर्जी टू फाइनल एनर्जी, ये बन गई CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ये बन गया 5/3 CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ये कैंसल, आंसर आ जाएगा 3/5। बस K = 3 ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ B ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਚਾਰਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Q².2C ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ C ਅਤੇ 3C ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ 3C ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ क्योंकि जो 3 ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, A 'ਚ ਵੀ ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, B ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 10/6 CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ 5/3 CV ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਵੋਲਟੇਜ ਔਨ ਈਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ, ਹਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ये साढ़े को 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, आ 4 ते 4 आपस में सीरीज है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, आ भी 2 माइक्रोफैरड है, आ भी 2 माइक्रोफैरड है, आ 3 माइक्रोफैरड है, ये सीरीज है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ते बैटरी जी है 20 वोल्ट की है। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ, ਇਹ 6 ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨਹੀਂ, 3 और 3, ਇਹ ਵੀ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 20 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ 6 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ 6 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਸੌਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। 10 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। पर हम तुम देखो ये क्रॉस का पैरेलल पोटेंशियल सेम होंगे, ये 10 है, 2 4 6 इन मिलके बनया ना, 6 इस तरह बनया ना, 10 ये है 10 ये है तो 10 ये है। पर जी सेंटर वाली ब्रांच है ये 2 पार्ट छुट्टी हुई है। इसका मतलब जे ये 10 वोल्ट है, ये कितना आ गया 5 वोल्ट है, ये कितना आ गया 5 वोल्ट है, ये कितना आ गया 10 वोल्ट है। हम 10 है, ये भी दोनों पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, तो 10 वोल्ट ये खोलिया गया तो 10 वोल्ट ये खोलिया गया। इस तरह करके असी हरेक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कढ़ लिया। जब तुम इन्हों सॉल्व करके देखोगे थोड़ा उन्ना ही बन जाएगा। देख लो 10 आया, 10 10 10 इथों 10 10 B1 + B2 10 10 20 बिल्कुल ठीक। 14th क्वेश्चन आ दो तिन्ने आपस में सीरीज है, सीरीज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 3/2 ਹੋਊਗੀ ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। 1/3 + 1/3 + 1/3 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸੌਰੀ 1/3 + 1/3 + 1/3 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3/3 1 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣੇਗੀ 1/3 + 1/6 2/2 + 1 3/6 1/2 ਇਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। दोनों आपस में पैरेलल ये बन गया 3 माइक्रोफैरड। फार्मूला एनर्जी होंगे हाफ CV² = 600 माइक्रोजाउल। हाफ C कितना 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3 1 माइक्रोफैरड
1/3 प्लस 1/6 2 माइक्रोफैरड ये आपस च पैरेलल आंसर 3 माइक्रोफैरड है तो कैपेसिटेंस आती है 3 माइक्रोफैरड। V स्क्वायर ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 600 माइक्रो जाऊल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ V ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 400 ਤਾਂ V ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਵੋਲਟ। ਲਓ ਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ 20 ਵੋਲਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ V ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ 20 ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ 20 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਲਓ ਜੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 20 ਵੋਲਟ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ 20 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ 20 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ आ गया 20/3 वोल्ट ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20/3 ਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20/3 ਵੋਲਟ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ C2/C1 + C2 * V = potential cross 3 माइक्रोफैरड तो ये बन जूगा 6/9 * 20 3 to the 6 3 3 the 9 ये बन जूगा 40/3 वोल्ट तो ये क्रॉस बन जूगा इस दे क्रॉस बन गया 40/3 ये क्रॉस कितना बनूगा 3/9 * 20 तो ये क्रॉस बन जूगा 20/3 वोल्ट। इस तरह करके तुसी कल्ले कल्ले दे क्रॉस भी पोटेंशियल कट के देख सकते हो। ये सी तुहाडा क्वेश्चन नंबर 14 मैनूं स्पेस चाहिए मैनूं रब करदा थोड़ा आसान करके देखिए तो ये बन जाएगी 1/c + 1/3c ये बन गया 4/3 1 4/3c तो c बन गया 3/4c ये जो है ये पैरेलल च 3c नाल तो नेट कैपेसिटी बन गई 3/4c + 3c ये बन गई 4 3 12 और 3 15/4c तो साडे कोले सर्किट एवें बन गया आ साडे कोले 40 वोल्ट का पोटेंशियल सीगा ये साडे कोले C सीगा ये साडे कोले 15/4 C सीगा ते इस तरह बन गया। और जे क्वेश्चन यही है भी असी इहदे क्रॉस सारे दे क्रॉस पोटेंशियल 40 वोल्ट क्वेश्चन तो ही है तो इहदे क्रॉस कितना है तो इहदे क्रॉस कढण वास्ते असी कहांगे C/C + 15/4C * 40 ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ C 4 और 15 19/4C * 40 160/19 वोल्ट आ गया ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ 160/19 वोल्ट ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ क्रॉस कटन वास्ते नहीं करना पड़ेगा 15/4c / c + 15/4c * 40 ये बन गया 15/4c * 19/4cc कैंसल 4 4 कैंसल * 40 600/19 वोल्ट टोटल करके देख लो 600 और 160 760.90 40 वोल्ट ही आ जाएगा पर आ जरा है हुन ये वाला ये जरा आया 160/90 जिस तुसीं ध्यान नाल देखो तो आ साडे कोले डायग्राम सी 40 वोल्ट वाली आ C सीगा आ साडे कोले 3C सीगा ये साडे कोले C सीगा ये साडे कोले 3C सीगा ये C सीगा 3C सीगा ये C सीगा आ 3C सीगा ये सारे दे क्रॉस कितनी है 160/90 ये सारे दे क्रॉस कितनी है 160/90 हुण ਇਹਦੀ कैपेसिटी सानू पता है ਇਹਦਾ पोटेंशियल सानू पता है तो ਅਸੀਂ इस कैपेसिटर ਦੇ क्रॉस चार्ज ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ठीक है पर सानू ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ पोटेंशियल ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ क्रॉस ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ क्रॉस ਸਾਨੂੰ पोटेंशियल सेम है ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ क्रॉस ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ पोटेंशियल ਇਸ ਦੇ क्रॉस पोटेंशियल ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ C/3C + C 4C * 160/90 cc कैंसल ये बन गया 40/19 वोल्ट। जे असी इस कैपेसिटर दे क्रॉस पोटेंशियल कढना है ये बन गया 3C/4C * 160/19 वोल्ट
120/19 वोल्ट ये बन गया। पर टोटल देख लो वही 160/19 आ गया, ये भी 160/19 है। इस तरह ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कट के देख सकते हैं। ये सी क्वेश्चन नंबर 15। आओ चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। साडे कोले एक कैपेसिटर है x = 0 तो लैके d, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर स्मॉल d है, यानी कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ਇਹ वाला इंट्रोड्यूस करता। ਇੱਥੇ वैल्यू होर होएगी कैपेसिटेंस की, इस पॉइंट से होर होएगी, इत्थे होर होएगी, उरे होर होएगी, उरे होएगी। तो देखो ये इत्थे होर है, इत्थे x होर हो जाएगा, और x होर हो जाएगा, और x होर हो जाएगा, यानी कि सारे की ने आपस में सीरीज च लगे हुए हैं। जो तुहानू पता है कि n कैपेसिटर आपस में सीरीज च लगते हैं तो 1 असीं जो टोटल कैपेसिटी कड्डांगे इहदा इंटैग्रल करांगे कितना हो जाएगा, c साडे कोले बन जाएगा dc एप्सिलॉन नॉट a फार्मूला होंदा साडे कोले c = एप्सिलॉन नॉट a by d जे डाइलेक्ट्रिक मटीरियल पाया होवे k। हुण k है जिहड़ा साडे कोले वो हैगा k नॉट 1 + अल्फा x जिहड़ा ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ है। ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साडे कोले ठीक है a ही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ dx लिखता, dx 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 सारा मिलके d बने। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ d ਤੱਕ ਜਾਣਾ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ d ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ dc ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ एप्सिलॉन नॉट a ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, k एप्सिलॉन नॉट a बाहर आ जाऊगा, ये बन गया k नॉट एप्सिलॉन नॉट a। इनको ਅਸੀਂ इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 तो लेके d तक, ये बन गया 1/1 + अल्फा x * dx। ਇਹਦਾ इंटैग्रल ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ k नॉट एप्सिलॉन 1/c = एप्सिलॉन नॉट a log of 1 + अल्फा x 1 + अल्फा log dx by x ਹੁੰਦਾ log of x। ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ पे अल्फा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अल्फा ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ c ਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ k नॉट एप्सिलॉन नॉट a अल्फा बटा नेचुरल log of 1 + अल्फा x। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਦ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k = k नॉट of 1 + अल्फा x ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ कैपेसिटी का फार्मूला ही होवे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ कैपेसिटेंस होएगी dc = k नॉट of 1 + अल्फा x एप्सिलॉन नॉट a dx upon d ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ एप्सिलॉन नॉट a by d a into dx टोटल एरिया लिखता ओवर स्मॉल d बाहर कट लिया, अंदर रह गया साढ़े कोई नॉट भी बाहर कट लिया, अंदर रह गया 1 + अल्फा x dx फ्रॉम 0 तो d, फ्रॉम 0 तो d सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो ये बन जाएगा k नॉट of एप्सिलॉन नॉट a by d 1 + अल्फा x का स्क्वायर by 2 फ्रॉम 0 to d। ये बन जाएगा k नॉट of एप्सिलॉन नॉट a by small d 1 + अल्फा d का स्क्वायर ओवर 2 1 + अल्फा d is the distance between the plates of the capacitor और a ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ d is total distance, this is not altered। ठीक है, और d ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ मतलब ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ a ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ a ਆਊਗਾ a 0 ਤੋਂ a 0 ਤੋਂ a a स्क्वायर by 2। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ क्वेश्चन नंबर 18। आओ देखिए इस क्वेश्चन ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ बैटरी ला के, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट करती। when बैटरी is disconnected ਤਾਂ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ cv, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2cv। बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, फिर ਕੀ ਕੀਤਾ C is filled with some dielectric, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ kc टेंशन कितना बन जाएगा v by k
डिवाइडेड बाय KC प्लस 2C प्लस 2CV इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। हुण देखो आ K ते K कट गया, बट दिस इज नॉट आल्टर्ड, इनू चेंज नहीं किया, इसनू चेंज किया तो ये बन गया C कैंसिल हो जाएगा, K प्लस 2 तो CV प्लस 2CV ये बन जाएगा 3CV डिवाइडेड बाय KC प्लस 2C, इस C कैंसिल 3 by K प्लस 2 into V। The common potential बन जाएगा 3 upon K by 2 into V, that is the common potential। फिर देख लो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ 2C ਦਾ 2C ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। 2C is not altered, still the capacitors are connected in parallel। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ, now C is filled with dielectric, डिस्कनेक्ट करने तो बाद, बट चार्ज रिमेन द सेम। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੀਲੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ V ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ 2CV ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕਹੂਗਾ KC plus 2C ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ K plus 2 of into C, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CV plus 2CV, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3CV तो 3CV by KC plus 2CC numerator denominator common and cancel, छोटा बन जाएगा 3 by K plus 2, 3 by K plus 2। क्वेश्चन नंबर कोई एक कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਸਲੈਬ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K1 है, एक कंडक्टिंग है, ये इंसुलेटर है, इत्थे एयर है, ਇਹਦਾ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, K1 K2 तो बड़ा है तो तुसी E ते X च ग्राफ बनाना है। पहला देखो एयर है, जो एयर होगी तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो एक होगा तो वैल्यू होगी सिग्मा बटा K एप्सिलॉन नॉट, ਇੱਥੇ भी सिग्मा बटा F, जो एक होगा पूरे K इक्वल टू इन्फिनिटी होगा यानी कि वैल्यू 0 होएगी। हुण ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ वैल्यू होगी ये K बाई एप्सिलॉन नॉट होएगी, K एप्सिलॉन नॉट, ये K2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ये K1 एप्सिलॉन नॉट होगी। जिन्ना K1 ज़्यादा होगा उन्ना जिहड़ा हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड घट होगा। पहला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देखिए इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज कर लो पूरी सी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू सी जो एयर सी, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप सीगा जो ਇਹਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੇ डाइलैक्ट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਘਟ ਗਈ। तीसरा स्टेप सीगा जो एयर सी ਤੇ एयर आ गई। चौथा स्टेप सीगा जो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कंडक्टिंग स्लैब रखती 0। पंजवां स्टेप सीगा साडी फिर एयर। छेवां स्टेप सीगा भी K1 बड़ा ते K2 छोटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है थोड़ी जी। सत्तवां स्टेप सीगा फिर दोबारा एयर वाला। इस तरह करके तुसी E ते X के विचकार ग्राफ बना सकते हो। ये जिहड़ा बनाया कॉरस्पॉन्डिंग टू एयर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू एयर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू कंडक्टिंग स्लैब जी कंडक्टिंग वास्ते है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू एयर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू इंसुलेटर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग टू एयर है। और K1 बड़ा सीगा इस करके इलैक्ट्रिक फील्ड घट आया, K2 छोटा सी थोड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इस तो इलावा एक छोटी चीज़ हो रहा है कि साढ़े को एक स्लैब पई आ, एक स्लैब आ पई है, एक साढ़े को कोई ये प्लेट पई है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ प्लस Q1 है, ਇਹਦੇ ਤੇ चार्ज प्लस Q2 है, प्लस Q। फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस, चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द प्लेट। देखो सपोज कर लो ये चार्ज x है तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q1 जो x माइनस कर देंगे। इंडक्शन हुई ये कितना आ जाएगा x माइनस Q1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस x।
इस चों आ वाला माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाऊगा, ये आ जाऊगा इंडक्शन होगी x माइनस Q1 माइनस Q2, तो इस ते कितना आ जाऊगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस x। देखो अंदरले चार्ज सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू साडे कोले जिहड़ा जिन्ना इत्थे सी उन्ना ही एंड वाला नाल इक्वेट कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो x कितना आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटा 2, वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटा 2। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਰੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ C1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V1 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ C2 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C1 प्लस C2, ठीक है जी। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इस केस एनर्जी होएगी -1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 दा स्क्वायर। सपोज कर दो मैंने आ पॉजिटिव प्लेट सी, ये नेगेटिव प्लेट सी, मैं उल्टी करके लाती, नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा ते, तो मेरे को V की वैल्यू आऊगी C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ते डाल्टा U आ जाऊगा -1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 दा होल दा स्क्वायर। अगर असी कैपेसिटर दी प्लेटां उल्टियां करके दिखा देंगे, पॉजिटिव नूं नेगेटिव नाल, नेगेटिव नूं पॉजिटिव नाल, एक छोटा सा कंसेप्ट सीगा कैल रूल। देखो सम टोटल ऑफ दी चार्जेस दिस पॉइंट ते 0 हो जाता, उहनूं असी KCL रूल कहंदे आ। मैं क्वेश्चन देख के समझावांगा। असी सारे स्विचां नूं बंद करता तां साडे कोले V कितना आऊगा, तुसीं देखो Q जिहड़ा हुंदा ओह CV दे बराबर हुंदा है, ठीक है। आ B कढ़ना है, C दिता हुआ है, B आ है, तो C1 V1 माइनस B, C2 V2 माइनस B, ते C3 V3 माइनस B इक्वल टू 0। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। ये बन गया C1 V1 C2 V2 C3 V3 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है क्वेश्चन नंबर 21। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। हुण तुसीं देखो ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ KCL KVL रूल ला के सॉल्व करना है। आ जंक्शन ये जो चार्ज पॉजिटिव ऑफ दी बैटरी तो आया सीगा, इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ Q1 प्लस Q2। पहला आपां KCL KVL रूल है जिहड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ अप्लाई करांगे पहले वाले सर्किट दे उत्ते। तो पहले सर्किट ते ਇਹਨੂੰ अप्लाई करांगे इस तरह। अगर ट्रैवर्स करदे कोई बैटरी दा पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो ਉਹਨੂੰ प्लस दा रहना है। अब देखो मेरी डायरेक्शन ते चार्ज दी डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस आऊगा Q1 अपॉन C कितना है 1। मेरी डायरेक्शन ते चार्ज दी डायरेक्शन सेम है, कितना आऊगा Q2 अपॉन 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब Q2 किसके बराबर आ गया, Q1 के बराबर आ गया। इस दे उत्ते लिखाओ KCL KVL रूल सेकंड वाले लिखाओ। हुण तुसीं देखो मेरी डायरेक्शन ते चार्ज दी डायरेक्शन अपोजिट है, ये आ जाऊगा Q अपॉन 2 Q अपॉन C, क्योंकि सम टोटल ऑफ पोटेंशियल 0 करना है Q अपॉन C, Q अपॉन 2। हुण पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आ गया प्लस दा चार्ज, इधर आ जाओ Q2 इस फ्लो कर रहे हैं, Q इस निकल रहा सीगा, ये आ गया Q अपॉन 2 माइक्रोफैराड, आ जाओ 2 माइक्रोफैराड। मेरी डायरेक्शन ते चार्ज दी डायरेक्शन अपोजिट है माइनस, मेरी डायरेक्शन ते चार्ज दी डायरेक्शन अपोजिट है Q2 अपॉन 1, इट इज इक्वल टू 0। Q1 आपस में बराबर है, तुसी इहनूं इत्थे पुट कर लोगे तो Q बन जाएगा 2 टाइम दा Q1। आओ इहनूं देखी जरा Q2 बाय Q2 Q2 बाय Q2 ये आपस में प्लस दा ते माइनस दा आपस में कट जाएगा, पर नहीं कटेगा। उसका कारण ये है कि मेरी डायरेक्शन ते करंट दी चार्ज दी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, माइनस ऑफ Q बाय 2 है। इत्थे हाफ और हाफ 1 बन जाएगा, माइनस ऑफ Q प्लस दा 4 बन जाएगा, माइनस दा Q2 बन जाएगा इक्वल टू 0। हुण Q जिहड़ा हैगा वो 2 टाइम दा Q1 है, और ये जे तुसीं इस नूं इहनूं ही पुट कर दो तां जिहड़ा 2 और 2 टाइम दा Q2 भी हो लिख सकते हैं।
ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ Q ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ Q2 ਲਿਖ ਦਿਓ, क्योंकि Q2 की थां दे उत्ते Q1 पुट करोगे या Q2 की Q1 की थां ते Q2 2 टाइम का Q2 बन जाएगा, चार्ज है जिहड़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। Q2 जिहड़ा हैगा 2 Q2 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, और Q2 कितना बन गया 2 माइक्रोकूलम। हुण चार्ज आ गया, इत्थों तुसीं दूसरा चार्ज भी कढ सकदे हो, दोनों सेम है क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों निकले। हुण फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस C। आ एक कैपेसिटर है जिहदे अक्रॉस असीं सारा कुछ कढना है। हुण देखो Q1 कितना है 2, पोटेंशियल कितना होगा CV, C 2 माइक्रोकूलम इनटू 1, आंसर ठीक है। Q इज इक्वल टू CV 1/2 वोल्ट, आंसर। तो KCL KVL रूल। हुण मेरी डायरेक्शन ते चार्ज दी डायरेक्शन पेपर में नेगेटिव टर्मिनल आ गया बैटरी दा -20 आ गया 2, ये जो चार्ज आ गया Q1 ते Q जो बन गया Q1 प्लस Q2 के बराबर बन गया। पहली गल चार्ज अपॉन C Q1 अपॉन 20, मेरी डायरेक्शन ते करंट की डायरेक्शन सेम है। आ जाओ इधर, आ प्लस का टर्मिनल आ गया बैटरी का, प्लस का 10 लिखता। हुण मेरी डायरेक्शन ते चार्ज की डायरेक्शन सेम है आपस दे विच, Q1 ये बन गया Q अपॉन 4, Q अपॉन 4 इक्वल टू 0। ऐसे देखो जरा, ऐसे ते लगाओ। हुण मेरी डायरेक्शन ते चार्ज की डायरेक्शन सेम है तो Q2 अपॉन 2, मेरी डायरेक्शन ते ओदी डायरेक्शन अपोजिट है Q1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 0, मीनस Q1 ते Q2 आपस में इक्वल है। तुसीं इस चीज़ नूं इत्थे यूज़ करने दे तरीके दे नाल तुसीं सॉल्व कर सकते हो। किवें ते थोड़े कोले टोटल चार्ज जो सेम हो गया तो तुसीं इस नूं 2 टाइम दा Q1 तो Q किहदे बराबर बन लिख सकते हो 2 टाइम दा Q1। हुण इत्थे पुट कर दो -20 प्लस 10 माइनस का 10 दूजी जाके जैसे बन जाऊगा प्लस का 10, Q1 अपॉन 20, Q किहदे बराबर है 2 टाइम दा Q1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। एक एलसीएम ले लो 20 Q प्लस 10 Q1 इज इक्वल टू 5 to the 10 is equal to 10, 11 Q1 is equal to 200, तो Q1 कितना बन गया 200 बटा 11 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज आ जाएगा, इन्ना ही Q2 आ जाएगा। ठीक है, इस तो तुसीं हरेक ब्रांच दे विच फिर देख लो, ये प्लस का 20 जा रहा है, आ Q1 इस फ्लो हो गया, अब प्लस का 10 आ गया, ये Q अपॉन 4 आ जाएगा। पहली इक्वेशन बन गई -20 प्लस Q1 अपॉन 2 नॉट 4 20, Q1 अपॉन 2 प्लस 10 ऑन Q अपॉन 4, इहदे ते लाया Q2 अपॉन 2 Q1 अपॉन 2, Q1 ते Q2 इक्वल हो गए। ये देखो Q1 इज इक्वल बाय 2 -20 प्लस 10 उधर जाके बन गया प्लस का 10, और Q1 जिहड़ा हैगा थां ते लिखता 2 टाइम दा Q1, इन्हां दा एलसीएम ले लिया, ये बन गया 4 एलसीएम आ गया, थोड़ी गलती हो गई, ये बन गया 2 टाइम दा Q1, ये भी Q1 सीगा, ये बन गया 2 टाइम दा Q1, ये 2 ते 2 भी कट गया, 2 रह गया, इत्थे होर आसान बन गया, कुछ भी करने की लोड़ नहीं पई, आपां नूं 2 टाइम दा Q1 डायरेक्ट मिल गया, 2 टाइम दा Q1 इस डायरेक्ट मिल गया, इस 4 बन गया, 10 दूसरे पासे चला गया, ये बन गया Q1/2 ते Q1/2, Q1 कितना आ गया हाफ और हाफ 1 10 माइक्रोकूलम, 10 ये है तो Q2 भी 10 आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। लास्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, Q1 चार्ज इधर चला गया, Q2 चार्ज इधर चला गया, Q1 दिता, Q2 इधर ते Q3 इधर, ते Q4 चार्ज इस चला गया, ते Q2 माइनस Q4 चार्ज इस कैपेसिटर च आ गया, Q2 माइनस Q4 इस पर इस दे विच एंड जाके दोबारा वही चार्ज Q1 आ गया, यानी कि Q1 सी जिहड़ा वो Q2 ते Q3 दा सामी सी, उन्ना ही चार्ज जिद्दां एंटर होया उन्ना ही चार्ज साडे कोले बाहर आ जाएगा। पहला असीं KCL KVL रूल नूं बाहरले सर्किट ते अप्लाई करांगे, इहनूं नाम दे दिंदे आ इत्थों A, इहदा नाम दे दो इत्थे B, इहदा नाम दे दो C, इहदा D, इहदा E, इहदा F। अप्लाई KVL rule on A, B, C, D, E, F, A, फिर A, B,
इन्हू G लिख दो, इन्हू H लिख दो। फिर अप्लाई करना रूल, अप्लाई KVL रूल ऑन A B G H F H E F A। एक बार उस लावांगे, एक बार इस लो करिए स्टार्ट। देखना है अगर मेरी डायरेक्शन देखो आप चलन लगे हैं, मेरी डायरेक्शन ते चार्ज की डायरेक्शन सेम है, इधर जा रहे हैं सेम है तो कोई गल नहीं, सेम है तो Q2 अपॉन C पहले देते Q2 अपॉन C। मेरी डायरेक्शन ते चार्ज की डायरेक्शन सेम है, Q4 अपॉन 3 इधर बाहर ला इक्वल टू अब माइनस आ गया इक्वल टू 10। ये बन गया Q2 अप्लाई करते हैं, ये सर्किट से अप्लाई करन लगे तो ये साडे कोले Q3 सीगा, ये बन गया Q3 अपॉन 3। ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ A वाला चार्ज भी आ गया तो A भी आ गया, ये बन गया Q2 माइनस Q4 प्लस Q3 ओवर 6। ਇਹਦੇ ਚ A वाला चार्ज और A दोनों मिलके इस पास होंगे, Q2 माइनस Q4 अगेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आ गया इक्वल टू 10। ठीक है जी, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ Q ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6 LCM ਆ ਗਿਆ, Q2 + 2 टाइम्स द Q4 = 10। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ Q2 + 2 टाइम्स द Q4 = 10। 10 6 दा 60 एक इक्वेशन बन गई। इन्हें देखिए थोड़ा ठीक करके लिख लिए, 6 LCM आ गया 2 टाइम्स द Q3 प्लस Q2 माइनस Q4 प्लस Q3 = 10। 3 टाइम्स द Q3 प्लस Q2 माइनस Q4 = 60। दो इक्वेशन बन गई साडे कोले Q2 ते Q4 दी टर्म च। हुण आ Q2 + 2 टाइम्स द Q4 है, ये भी Q2 माइनस Q4 है इक्वल टू 60 है। हुण इन्हां नूं आपस च सॉल्व करना है। Q1 साडे कोले दी सानूं लोड़ नहीं पई, Q2 + Q3 Q1 दा टोटल है ना, दोनों दा सम करके निकलेगा। हुण असीं इहनूं थोड़ा ठीक करके लिखिए, ये 3 टाइम्स द Q3 है प्लस Q2 माइनस Q4 = 60। 10 6 दा 60 ये बन जाएगा। ये रूल हैगा जिहड़ा इस सर्किट ते भी अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा सार बन जाए, तीन वेरिएबल सी सानूं तीन इक्वेशनस चाहिए इहदे लई सॉल्व करन लई। ये बन गया Q2 अपॉन 6 प्लस Q2 माइनस Q4 अपॉन ये कितने माइक्रोफैरड की सीगी, Q2 माइनस Q4 ये 6 है, ये 3 है, इन क्वेश्चन कोई मिस्टेक होगी लिखने लगी, फैरड दी है 6 माइक्रोफैरड। ता ये बन गया डिवाइडेड बाय 6 ते ये बन गया देखो इधर है मेरी डायरेक्शन ते करंट दी डायरेक्शन अपोजिट है माइनस Q3 ओवर 3 = 0। Q2 upon 6 plus Q2 minus Q4 upon 6 is minus of Q3 = 3। इन्हें सॉल्व कर लिया, 3 6 का एलसीएम द्वारा 6 आ जाएगा। ये बन गया Q2 + Q2 minus Q4 minus 2 times the Q3 = 0। ये बन जाएगा 2 times the Q2 minus Q4 minus 2 times the Q3 = 0। ਹੁਣ Q3 ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਈ ਹੈ, 2 times the Q2 minus 2 times the Q3 = Q1। तो Q1 किसके बराबर है, 2 टाइम द Q3 ये है Q2 + Q3 के बराबर है। ये बन जाएगा Q2 इन्हें इधर ले आंदा, ये बन जाएगा 2 टाइम द Q2 माइनस Q2 = 3 टाइम द Q3। इसका मतलब साडा Q2 बन जाएगा = 3 टाइम द Q3। लो जी Q2 निकलेगा 3 टाइम द Q3, इत्थे करो इन्हें सब्सटीट्यूट, 3 टाइम द Q3 सब्सटीट्यूट करोगे, 3 टाइम द Q3 तो 6 टाइम द Q3 माइनस Q4 = 60 आ जाएगा। इत्थे 3 टाइम द Q3 सब्सटीट्यूट करोगे तो बन जाएगा 3 टाइम द Q3 प्लस 2 टाइम द Q4 = 60। एक इक्वेशन बाटे कोले आ बन गई 6 टाइम द Q3
माइनस Q1 इज इक्वल टू 60 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ Q3 plus 2 ਟਾਈਮ ਦਾ Q1 is equal to 60 12 ਟਾਈਮ ਦਾ Q3 minus 2 ਟਾਈਮ ਦਾ Q1 is equal to ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 15 ਟਾਈਮ ਦਾ Q3 is equal to 180 ਤਾਂ Q3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 180.15 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਲਓ ਜੀ Q3 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ Q3 ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ Q2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 45 36 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ लो भी Q2 भी आ गया तो Q3 भी आ गया हुण इहनूं Q2 ते Q3 दी वैल्यू नूं एक इक्वेशन च पुट कर दो इस कर दो ये जो कीता ये बन गया 12 3 दा 36 प्लस 2 टाइम दा Q1 इज इक्वल टू 60 ये बन गया 24 Q1 बन गया इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम लो भी Q1 भी आ गया Q1 भी आ गया तो Q2 भी आ गया Q3 भी आ गया Q4 कटिए Q4 आ गया साडे कोले कितना होगा ਹੁਣ Q2 ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ Q2 ਆਇਆ 36 plus 2 ਟਾਈਮ ਦਾ Q4 is equal to 60 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ Q4 is equal to 24 ਤਾਂ Q4 ਆ ਜਾਊਗਾ 12 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Q1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 12 Q2 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ Q2 ਕਿੱਥੇ ਹੈ 36 Q3 किथे है 36 ਤੇ 12 कितने हो गए 48 ये आपस में मिलना चाहिए सी कोई गड़बड़ हैगी है मतलब कोई प्लस माइनस 2 टाइम दा Q3 ये बन गया Q2 plus Q2 2 टाइम Q2 minus Q4 minus Q3 2 टाइम दा Q3 और 2 टाइम दा Q2 minus 2 टाइम दा Q3 is equal to Q1 समझ दिता Q2 plus Q3 इन्होंने लिया इधर इन्होंने लगे उधर 3 टाइम द Q3 is equal to 3 टाइम द Q3 is equal to Q2 आ बन गई इक्वेशन Q2 भी निकल आया हम Q2 की वैल्यू साडे कोल निकल आई 3 टाइम द Q3 ते Q1 की वैल्यू बन जाएगी 4 टाइम द Q3 इन्हां वैल्यूआं नूं सब्सटीट्यूट करके देखिया इस 3 टाइम Q3 प्लस 2 टाइम Q4 इज इक्वल टू 60 ऐसे देखिया 6 टाइम Q3 माइनस Q4 सीगा Q4 है गड़बड़ हो गई लिखन 6 टाइम दा Q4 इज इक्वल टू 60 ये सीगा ओनू पुट कीता 3 टाइम दा Q3 प्लस 2 टाइम दा Q4 इज इक्वल टू 60 ਇੱਥੇ Q4 है इन्होंने कटिया तो ये बन गया साढ़े को Q3 आ गया ठीक है Q3 की साढ़े को आ गया 180 डिवाइडेड बाय 15 12 माइक्रोकूलम ठीक है Q4 कटो हो जरा Q4 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Q4 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 36 plus 2 टाइम ਦਾ Q4 is equal to 60 ਤੇ 24 ਦਾ Q4 आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 माइक्रोकूलम वो Q4 आया Q3 भी आ गया Q4 भी आ गया ये Q4 की वैल्यू आई है पुट करके Q3 आ गए Q4 आ निकल आया Q3 की वैल्यू में ਅਸੀਂ इस पुट कीता 3 into 12 ये साडे कोले 36 आ गई आ भी आ गई ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ Q1 है जो Q2 ਤੇ Q3 ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 36 plus 12 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ Q1 ਆ ਜਾਏਗਾ 48 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ Q2 ਤੇ Q3 ਦਾ ਸਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 36 plus 12 48 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ Q1 ਤੇ Q2 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ Q2 minus Q4 Q2 किथे आ गया Q4 किथे आ है देख लो ठीक आ गया 24 ये जो फ्लो कर रहे हैं 24 इस जो फ्लो कर रहे हैं और Q2 36 इस जो जा रहे हैं Q3 12 इस जो जा रहे हैं Q4 किथे है 12 माइक्रोकूलम इस जो जा रहे हैं और Q2 कितने कटिया सी 36 plus 2 टाइम द Q4 हाँ ठीक है
जिन्ना चार्ज साडा एंटर होया सी उन्ना ही चार्ज लिया। फाइंड द चार्ज क्वेश्चन सीगा जिहड़ा फाइंड द चार्ज इन ईच ब्रांच, फाइंड द चार्ज इन ईच ब्रांच। इस तरह करके असी KCL KVL रूल लगा के असी हरेक ब्रांच के विचों चार्ज ते करंट नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सी KCL KVL रूल। करंट रूल ये कहता है कि सम टोटल ऑफ दी चार्जेस जिहड़ा हैगा वो जीरो होना चाहिए है। KVL ये कहता है कि सम टोटल ऑफ पोटेंशियल जिहड़ा हैगा वो जीरो होना चाहिए है। मीटिंग गेटिंग करंट एंट्रिंग करंट नूं ये पॉजिटिव लै रहे, लीविंग करंट नूं नेगेटिव लै रहे। अगर तुसी थोड़ी तुहानूं आंदे आंदे किते पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी मिल जांदा ट्रैवर्सिंग इन ए लूप, if you come across the positive terminal of the battery, mark it positive. If you come across the negative terminal of the battery, mark that negative. अगर छोटी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो प्लस लेना है, अगर छोटी ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन ते करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लेना है। ये सीधा KCL KVL रूल।